Good evening, everyone. Okay, so is my audio clear to all of you? May I get a confirmation on chat? Okay, good evening. Good evening. Thank you, everyone. We'll just wait for 2 more minutes for all the participants to join and then we'll start. Ganesh sir will just start within a minute. We are just waiting for the participants who haven't yet joined. Hello. So yes, good evening, everyone. We'll just begin. So, good evening, everyone, and a very warm welcome to all our participants joining us today. I, Palak Jain from Aimtech Business Solutions Private Limited, and it is my pleasure to host today's exclusive webinar, Tally Prime 7.1 Unpacked. As a five-star Tally certified partner, our goal at Aimtech is to help businesses leverage technology to work smarter, faster, and more efficiently. And hence, today's webinar is organized to give you a practical understanding of the latest features in Tally Prime 7.1. During this webinar, we will explore how Tally Prime 7.1 can help you create professional and branded invoices, export financial statements as per Schedule 3, enable online payments through connected banking, simplify HSN SAC verification and validation. We encourage you to actively participate. Note down, I request the participants to please mute themselves. We encourage you to actively participate, note down your questions, and engage with us throughout the session. बरोबर आहे निश्चित आवक So, बंद की ना पण without any delay, let's begin our journey.
I'll just share the screen. Let me know if my screen is visible to all of you. Yeah, I hope my screen is visible to all of you, right? So, as we had already discussed in our previous session, that we are today more overly going to focus on two of our major features. All of the remaining features we have already covered in our session one. फिर भी I'm also going to take a small recap for all of you to revise. I'm extremely sorry, participants. We are not allowed to give you the recording at your place. We'll record it at our cloud, and then I'll ask the authorities to share it with you. It is a discount receipt. It is a refund, right? So we shouldn't take that. May I please ask the participants to please mute themselves? Yeah. So here, today we are going to focus on two of our major features. By transfer, I just have to check. Yeah. So today, the most important features which we are going to look over are invoice branding, and the second one is Schedule 3 financial statements export. Okay. So firstly, we are going to begin with our invoice branding. For that, I'll just open my PPT, and I would like a confirmation from the participants if my PPT is visible. Okay, it's visible. Thank you so much. सो एक रिकैप करवा देती हूँ. लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था 5 जून को, उसमें वी हैड ऑलरेडी टेकन अप सम फीचर्स सच एज ऑटो रैप टेक्स्ट. फिर हमने HSN सैक वैलिडेशन कर लिया था. फेच पार्टी यूजिंग GSTIN जो ऑप्शन आया है. विल यू शेयर दिस PPT एट द एंड? या श्योर, आई डू दैट. यस, तो यहाँ पे हमने ये फेच पार्टी यूजिंग GSTIN देख लिया था. उसके बाद में व्हाट वी सॉ इज कनेक्टेड बैंकिंग में एक और बैंक ऐड हो गया है, दैट इज ICICI. वो भी हमने देख लिया था. टुडेज पार्ट इज मोर ओवरली ऑन शेड्यूल 3 एंड इनवॉइस ब्रांडिंग. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विथ इनवॉइस ब्रांडिंग एज दिस इज वेरी मच न्यू एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ द यूजर्स. ठीक है. सो सबसे पहले इनवॉइस ब्रांडिंग में आपको क्या चीजें टैली में एड ऑन करके मिली है. तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स की एक लिस्ट मिल जाती है. यू हैव गॉट अबाउट 7 टेम्पलेट्स ओवर ईयर, जो कि एक क्लासिक डिजाइन किए गए हैं. यू कैन मेक चेंजेस इनटू दैट एज वेल, यू कैन क्रिएट योर ओन एज वेल. वो एक सैम्पल टेम्पलेट आपके लिए क्रिएट किया गया है. उसमें यू आर ऑल्सो अलाउड टू ऐड हेडर, फुटर, वाटरमार्क्स अगर आप देना चाहते हैं. इफ यू वांट टू एडिट एनी फील्ड प्रॉपर्टीज तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट इज द कस्टम फील्ड. Here you are able to create or alter any custom field which you feel is to be added or to be removed from the previous configurations. इसको लाइव टैली में देखने के लिए I'll just take you to tally. I hope my tally screen is visible to all of you. Okay. सो यस, सबसे पहले आपको अपने कोई भी एक सेल्स इनवॉइस को ओपन कर लेना है. ये टेम्पलेट को हम डिजाइन करना सीख रहे हैं. ये मेरा एक सेल बिल है जो मैंने ओपन कर लिया है. आई सेड Ctrl+P. अगर आप अपने टैली से ये स्क्रीन को कंपेयर करेंगे तो यू आर गेटिंग एन एडिशनल ऑप्शन ओवर हियर विच इज द टेम्पलेट नेम.
जहाँ पे आप देख पा रहे हैं करंटली इट इज नन, मतलब टैली का जो क्लासिक फॉर्मेट है वही सिलेक्टेड है, आई हैवंट टेकन एनी अदर फॉर्मेट। तो जो क्लासिक फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि आप सभी अभी तक यूज कर रहे होंगे। नाउ व्हाट एडिशनल वी कैन डू इज यू कैन ऐड हेडर, यू कैन ऐड फुटर, यू कैन गिव अ वाटरमार्क बिहाइंड। वो सारे ऑप्शंस को एनेबल कैसे करना है और उसकी वर्किंग कैसे होगी वो हम अभी देखने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू गो टू कंट्रोल एच चेंज टेम्पलेट, और एल्स यू कैन क्लिक ओवर हियर। ये जो आई इंफॉर्मेशन का एक सर्कल दिख रहा होगा आपको, यू कैन क्लिक ओवर देयर। यहाँ पे चेंज टेम्पलेट करते ही जितने भी टेम्पलेट्स है वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। सो दीज आर सम टेम्पलेट्स, जैसे मैंने आपसे बात किया था कि वी आर हैविंग अबाउट 7 टेम्पलेट्स ओवर हियर जो कि प्री डिजाइंड है। यू कैन मेक चेंजेस इन दैट एज वेल एंड यू कैन क्रिएट योर ओन एज वेल। तो ये कुछ यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइंड टेम्पलेट्स है। Every template has something special and you have to configure based on your industry type। जैसे अगर यहाँ पे हम देखेंगे, सो आप देख सकते हैं कि वी आर गिवन लाइक मल्टीपल लोगोज अगर आपके हैं तो यू कैन डिजाइन मल्टीपल लोगोज, उसके लिए एक अलग टेम्पलेट है। मल्टीपल एड्रेसेस अगर है तो उसके लिए एक अलग टेम्पलेट है। इफ यू नीड दैट क्यू आर शुड बी कोड, क्यू आर कोड शुड बी एट योर सेंटर, तो उस तरीके का भी इनवॉइस इसमें फॉर्मेट दिया गया है। इफ यू नीड टू ऐड मल्टीपल बैंक डिटेल्स, जैसे इफ यू आर डीलिंग विथ एक्सपोर्ट्स एंड यू हैव सेपरेट अकाउंट्स फॉर योर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल्स, तो वहां पे आपको मल्टीपल बैंक डिटेल्स अगर ऐड करना है तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो नाउ अवेलेबल। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो आपकी जो कंपनी डिटेल्स है उस पर एक सेपरेट फोकस आ जाए, वो एक अलग ही प्लेस पे हाईलाइट हो जाए वेर यू आर नॉट हैविंग योर बिल टू एंड शिप टू डिटेल्स, तो वहां पे यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ फॉर्मेट विच कैन बी यूज्ड फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज, सो दैट योर कंपनी डिटेल्स आर गिवन अ सेपरेट फोकस ओवर देयर। ओके, आई ऑल्सो शो यू द प्रीवियसली डिजाइन, मतलब हमने कुछ कस्टमर्स के लिए डिजाइन किए गए टेम्पलेट्स भी है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वी हैव कंसिडर्ड अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे अगर कोई गोल्ड में डीलिंग करता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड फर्म है, या कोई आइटम्स में डील करते हैं, तो इस तरीके के हमने सारे केसेस को कंसिडर करते हुए कुछ इनवॉइसेस रेडी किए हुए हैं जो भी मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने वाली हूँ। लेट मी फर्स्ट टेक यू टू टैली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले F2 में आपको टेम्पलेट का लिस्ट मिल जाएगा, विच एवर टेम्पलेट यू फील टू गो विथ यू कैन सिलेक्ट। अगर आपकी कंपनी हैज मल्टीपल लोगोज, इफ यू आर अफिलिएटेड विथ अदर पार्टनर्स विच यू वांट टू ऐड द लोगोज ऑफ, देन यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू ऐड देयर लोगोज। यहाँ पे आप मल्टीपल लोगोज पे आएंगे एंड इफ यू सी दिस फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको एक तो ये वाला है द सेंटर्ड विच इज योर रजिस्टर्ड लोगो, एंड देन द अदर लोगोज विच यू हैव फॉर योर कंपनी कैन बी गिवन एट द साइड्स। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे 3 लोगोज आर अलाउड एंड राइट साइड पे 3 लोगोज आर अलाउड, तो यू कैन ऐड मोर लोगोज ओवर देयर। in case if you do not want to add multiple logos, but if you wish to have, like let's say I need to have multiple addresses, तो उसके लिए भी यू विल गो टू F2 टेम्पलेट लिस्ट एंड यू विल सिलेक्ट टेम्पलेट नंबर 6 विच इज मल्टीपल एड्रेस। अब यहाँ पे सी आई वांट टू यूज मल्टीपल एड्रेसेस, लेकिन ये जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन आई नीड टू चेंज, आई डू नॉट वांट टू गो विद द प्री डिजाइंड वन, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहीं पे आपको F4 में अगर कोई फील्ड रिमूव या ऐड करनी है तो वो आपको F4 के थ्रू करना होगा। इफ यू नीड टू ऐड अ वाटरमार्क, तो आप F5 वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। आपका वाटरमार्क टेक्स्ट में है या इमेज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर सिलेक्टिंग वो पर्टिकुलर जो आपने सिलेक्ट किया है इमेज, वो कौन से पाथ पे है, वो पाथ लेने के बाद में यू विल से कि आई वांट दिस थिंग टू बी एडेड। वो हॉरिजॉन्टल में चाहते हैं आप या डायगोनल में चाहते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट। साइज यू कैन डिफाइन अगर आपको एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए या एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। प्लस दी ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब उसका डार्कनेस कितना चाहिए, कितना विजुअल होना चाहिए, वो इज इट टू बी लाइट और टू बी डार्क, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं, आई जस्ट से कंट्रोल टी जूम ताकि आप देख पाए, आई हैव एडेड अ सीएज लोगो ओवर हियर। अब ये मेरा डार्क ओपेसिटी है। इफ आई नीड कि नहीं मुझे ये थोड़ा सा लाइट दिखना चाहिए तो आई कैन ऑल्सो गो विद द मीडियम वन। ठीक है, आफ्टर एडिंग ऑफ द वाटरमार्क लेट्स गो टू द हेडर इमेज। हेडर इमेज ऐड करने के लिए यू हैव टू गो टू F6। F6 हेडर इमेज पे क्लिक करते ही यू विल सी यूज इमेज इन कंपनी हेडर। अगर आपको कोई सर्टन इमेज है जो एज अ कंपनी हेडर आप चाहते हो तो यू विल से यस। यस करने के बाद जो आपका पर्टिकुलर इमेज है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे।
आपको बिलो इनवॉइस टाइटल चाहिए या अबव इनवॉइस टाइटल चाहिए, दैट इज अ चॉइस विथ यू। यू विल सिलेक्ट कि मुझे कहाँ पे ये प्लेस करना है। फिट इमेज टू पेज विथ, पेज की जो विथ अभी आपने डिटरमाइन की है उसी में आप फिट करना चाहते हैं या एडिशनल स्पेस आप डिटरमाइन करेंगे, वो आपको यहाँ पे दे देना है। एंड ये जो पर्टिकुलर लेटर हेड या हेडर आप ऐड कर रहे हैं वो आपको सिर्फ फर्स्ट पेज पे चाहिए या जितने भी मल्टीपल पेजेस क्रिएट होंगे उस पे भी आप चाहते हैं, वो आप यहाँ पे डिटरमाइन कर देंगे। वंस इट इज डन यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे वो ऐड हो गया है। नाउ इफ आई नीड कि ये जो दिख रहा है एडिशनली जो कंपनी नेम ये सारी चीजें दिख रही है, आई नीड टू रिमूव दिस, तो वो भी मैं यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। आई जस्ट नीड टू गो टू F6 कस्टम इमेज, सॉरी हेडर इमेज, एंड यहाँ पे instead of this I'll say no, and here I'll be able to custom। जब ये F7 custom field पे मैं आऊंगी तो आई कैन डिटरमाइन कि मुझे कंपनी डिटेल्स का फील्ड ऐड करना है या निकालना है, ऑल्टर करना है। आई बी एबल टू हैव दोज ऑप्शंस विथ मी टू कॉन्फ़िगर। ठीक है, आफ्टर एडिंग हेडर सेम वेज यू विल बी एबल टू ऐड द फुटर एज वेल। F6 के राइट साइड में ही एक छोटा सा एरो है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द फुटर इमेज। जो भी आपका फुटर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे and that way your footer will be visible। Just saying yes to this option, yeah, and when you say control T you will be able to see ये मेरा footer ऐड यहाँ पे हो गया है। You can also export and check कि उसका height width proper है या you need any changes in the height and width। Same ways, what other options do I have with me is the font and color। जैसे मैंने आपको बताया था कि I do not want this font to be used। 7.1 बीटा इंस्टॉल करते ही you will be able to see that you are getting certain fonts, different fonts to use। ऐसा नहीं है कि you are only getting Arial और Calibri over here, you are getting all the multiple fonts। आपको सिर्फ यहाँ पे F8 पे आना है and you have to select कि कौन सा font आप इसमें से select करना चाहते हैं। आफ्टर डिटरमाइनिंग द फॉन्ट यू विल से कि थीम कलर क्या होना चाहिए। थीम कलर अभी फिलहाल के लिए पर्पल रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप जैसा भी चाहें यू कैन सिलेक्ट द अनदर वन। लेट्स से इफ आई सिलेक्ट बैकग्राउंड कलर में, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो यू कैन चेंज द बैकग्राउंड एज वेल। एंड फॉन्ट कलर अगर आप ऑटो जनरेट करना चाहते हैं देन यू कैन कीप इट एज ऑटो। इफ यू वांट कि नहीं मुझे कोई एक सर्टन कलर में ही वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो दैट वे इज ऑल्सो यूल बी एबल टू कॉन्फिगर। ठीक है, आफ्टर डूइंग फॉन्ट एंड कलर लेट्स से F8, हाँ वी आर डन विद द फॉन्ट एंड कलर प्रॉपर्टीज। नाउ यूर यू विल गेट द ऑप्शन टू एडिट फील्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू गो टू F9 यहाँ पे फॉर ईच एंड एवरी फील्ड, जैसे आप देख पा रहे हैं अभी जो है करंटली येलो में जो आपको दिख रहा है दैट इज अ सिलेक्टेड फील्ड। अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है टाइप ऑफ कॉपी का जो लाइन है, दैट पर्टिकुलर लाइन आइटम को मैंने सिलेक्ट किया है। हियर इफ आई नीड टू से कि नहीं जो टाइप ऑफ कॉपी रिफ्लेक्ट होता है दैट शुड रिफ्लेक्ट इनटू बोल्ड, वो इटैलिक में होना चाहिए। या कुछ एडवांस फील्ड्स अगर मैं डिटरमाइन करना चाहती हूँ कि नहीं इसका फॉन्ट ही पूरा अलग होना चाहिए देन आई कैन सिलेक्ट दोज पर्टिकुलर फॉन्ट्स। इफ इट शुड रिफ्लेक्ट इनटू मीडियम तो मीडियम, मैंने इसका कलर वही रख दिया है। लेट्स से बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देती हूँ, राइट में ही दिखना चाहिए। बैकग्राउंड कलर को ले लेते हैं येलो, एंड देन व्हेन यू विल सी आप देख पाएंगे टाइप ऑफ कॉपी बोल्ड हो गया है, इटैलिक में आ गया है एंड द कलर हैज चेंज्ड टू येलो। इस तरीके से ईच एंड एवरी फील्ड को मैं चेंज कर सकती हूँ। नाउ इट हैज सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर लाइन कंप्लायंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टाइटल सब टाइटल, कौन सी लाइन को आप चेंज करना चाहते हैं दैट यू कैन सिलेक्ट एंड चेंज ओवर हियर। इफ यू नीड टू रीसेट, अगर मान लीजिए मैंने ये जो किया है टाइप ऑफ कॉपी आई वॉन्ट दिस टू गेट रीसेट, तो मैं यहाँ पे रीसेट फील्ड पे क्लिक करके आई मेक दी चेंजेस। यस करूंगी तो जो मैंने अभी तक प्रीवियसली डिफाइन किया है वो चेंजेस निकल जाएंगे एंड इट विल अलाउ मी टू मेक दी चेंजेस अगेन। ठीक है, इस तरीके से आई बी एबल टू मेक चेंजेस इन माई पर्टिकुलर इनवॉइस। मुझे मेरा इनवॉइस कैसे पर्सनलाइज करना है आई हैव द ऑप्शंस विथ मी। ठीक है, then coming back to change template, yes we have already seen edit field properties, font and color देख लिया है, custom fields में क्या ऐड कर सकते हैं वो देख लिया है, watermark किस तरीके से ऐड होगा वो देख लिया है। So if I take you to my PPT, we are done with this slide।
यहाँ तक अगर किसी को कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं एंड देन वी कैन गो फर्दर. I'll just wait for a moment. If you have any queries, you can put down in the chat. Alignment of ledger description. हाँ, या यू कैन चेंज. एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड, ऑटो रैप आने की वजह से. ओके, एडिशनल लेजर अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सी ऑटो रैप आने की वजह से आपका जो लेजर का डिस्क्रिप्शन है वो तो ऑटो फिट हो ही रहा है. लाइक इट इज नॉट गोइंग टू श्रिंक और नॉट गोइंग टू एक्सटेंड टू मच. बट एडिशनल लेजर का आपका जो कंसर्न है वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ. कैन यू प्लीज इलेबोरेट? It was on left hand side. Let me just go to tally. Okay, you want the description to reflect on right hand side. Let's just check for description. Here you will go to, let's say, मेरा template. यहाँ पे if you'll see sir, वो okay items वाला ही है. ठीक है, we can take this one. Add or remove fields. या फिर here you can go to edit properties. Custom field वाला जो है ना. Let's say party and invoice details. Here you can select जो description है ना, you will select description. बट यहाँ पे साइड डिफाइन करने के लिए यू हैव टू गो टू यहाँ पे. वेयर इज द डिस्क्रिप्शन फील्ड? 6 edit properties. या दिस वे यू विल बी एबल टू चेंज सर. ये देखिए जैसे अभी मैंने क्या किया है, आइटम नेम के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन रिफ्लेक्ट होता है राइट. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ब्रिंग योर कर्सर ओवर हियर. जैसे आप देख रहे हैं मैंने आइटम नेम पे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन पे अपना कर्सर रख के यहाँ पे F6 एडिट प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे. एंड इसमें शो एडवांस फील्ड ऑप्शंस है. इसको आप यस करेंगे तो यहाँ पे यू विल गेट द ऑप्शन कि अलाइनमेंट लेफ्ट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए या राइट होना चाहिए. सो इफ यू विश कि डिस्क्रिप्शन राइट में आना चाहिए, देन सिलेक्ट राइट ओवर हियर सो इट विल रिफ्लेक्ट एट द राइट साइड. आप देख रहे हैं आइटम नेम जैसे शिफ्ट हुआ है ना, सेम वेज योर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो डिस्क्रिप्शन विल ऑल्सो शिफ्ट. या एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजर ऑल्सो यू कैन डू द सेम वे. स्टॉक आइटम या लेजर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता. एनीथिंग एल्स? और किसी की अगर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन आस्क. आपके लिए मोस्टली जो है F7 और F9, ये दोनों ऑप्शंस ज़्यादा यूजफुल रहेंगे अगर आप अलाइनमेंट में चेंजेस चाहते हैं. क्योंकि अलाइनमेंट अभी तक के लिए ये फिक्स किया हुआ था एंड नाउ यू आर हैविंग F9 जहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर यू वांट टू चेंज दी अलाइनमेंट. इनवॉइस फॉर्मेट नॉट फिट टू फुल पेज, टू मेनी स्पेस बिलो. इनवॉइस साइज लुक्स स्मॉल. नो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड अ फुटर. जब आप फुटर ऐड कर देंगे ना तो फिर मतलब लाइक हाइट विड्थ इंक्रीज करने के बाद व्हेन यू विल सी, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के बाद जितना स्पेस है दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय दी फुटर. तो आपको वो जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वो नहीं दिखेगा. आई जस्ट शो यू, आई हैव सम इनवॉइसेस विथ मी. मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए. अभी अगर मेरा जो फॉर्मेट है वो आप लोगों को विजिबल होगा तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एडेड द हेडर ओवर हियर, watermark, and then we have added the footer. ताकि वो जो blank space था that has got utilized and it looks appropriate. It is utilizing all of the space which was remaining blank over here. Address add कर सकते हैं या footer में whichever details you find that can be added. Yeah, sure. We'll share the recording of the previous session. After the session, we'll ask the team to get it uploaded on the YouTube or else we'll share it with you personally.
ओके, सो दिस वेज ये जो आपका कंसर्न था कि ब्लैंक स्पेस रह रहा है, दैट कैन बी कवर्ड. आई ऑल्सो हैव सम अदर एग्जाम्पल्स टू डिस्प्ले. सी दिस वे हियर वी हैव यूज्ड दी वाटरमार्क ऑल्सो. वाटरमार्क अगर आपको डायगोनल में चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से डाल सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि वी हैव डन इट फॉर मल्टीपल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रही हूँ. अगर आपके कोई यूजर क्लाउड यूजर है तो दिस वे टैली ऑन क्लाउड उन्होंने रखा है, या जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो डील कर रहे हैं, तो वो अपना बिल कुछ उस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं ताकि आपका वाटरमार्क, आपका लोगो वो हाईलाइट कर दे लोगों के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज दिस एग्जैक्टली. एंड योर वी ऑल्सो हैव फॉर इलेक्ट्रिकल्स, अगर इलेक्ट्रिक मार्केट है या सी दिस वे योर वी हैव ऑल्सो हाईलाइटेड कि अगर कोई अमाउंट है, जैसे यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो जो टोटल अमाउंट है उसको एक अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है. टैक्सेबल वैल्यूज आर हाईलाइटेड इन अ डिफरेंट कलर एंड जीएसटी इज हाईलाइटेड इन अ डिफरेंट कलर. टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर दिया है. बैंक डिटेल्स अगर आप चाहें तो मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं. हियर वी हैव केप्ट सिंगल. आई ऑल्सो शो यू द एग्जांपल्स फॉर मल्टीपल डिटेल्स. डिजिटल सिग्नेचर भी यहीं पे ऐड हो गया है एंड कंप्लीट इनवॉइस इज डिजाइंड. हाउ कैन वी ऐड साइन एंड स्टैम्प इन इनवॉइस? या विल टेक दिस. This is for the gold market. If you're a jewelers or something like that, then you can design your invoice in such a way. यहाँ पे हमने क्या किया, आपका जो डिटेल्स था वो सेपरेटली हाईलाइट हो गया एंड योर बिल टू शिप टू, आपके जो कंसाइनी डिटेल्स है दैट विल बी हाईलाइटेड सेपरेटली. And then comes your item descriptions and your taxable values, HSN summaries, and finally then we have also done some customizations for our societies, the people working with societies. तो वहाँ पे अगर आप एक सोसाइटी के हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं तो आपके बिल का फॉर्मेट कैसा हो सकता है, व्हाट एडिशनल यू कैन ऐड. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएटरी बैंक डिटेल्स अगर आपकी कोई है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो. सी वी हैव गिवन मल्टीपल डिटेल्स. यहाँ पे एक डिटेल है मेन बैंक की, एंड देन उसके साथ में अगर आप एक्सपोर्ट्स में वगैरह डील कर रहे हैं एंड यू हैव मल्टीपल बैंक्स एट योर प्लेस, तो यहाँ पे आप दूसरा बैंक भी डिफाइन कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस डाल के. एंड फाइनली यू कैन क्लोज इट विद अ फुटर. I'll also show you we have done for IT and computer hardware. यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर इज ऑल्सो चेंज्ड. इफ यू आर नॉट ओके विथ वाइट या ग्रे तो यू कैन ऑल्सो गो विथ अ लाइटिश कलर विच कुड मैच योर कॉम्बिनेशन द अनदर वन कलर विच यू आर सिलेक्टिंग. यहाँ पे लेटर हेड आप चाहे तो इस पे डिफाइन भी डिजाइन भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई इमेज में अपलोड करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड द फाइनल वन आई शो यू एंड देन विल गो टू द क्वेरीज. दिस वे हमने उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो हाईलाइट कर दिए, पर्टिकुलर कंपनी हाईलाइट कर दी, उनका एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस हाईलाइट कर दिया, ई इनवॉइस के डिटेल्स आ गई यहाँ पे. देन द बिल टू शिप टू पार्ट कम्स एंड फाइनली द अमाउंट, द आइटम्स विच वर सिलेक्टेड, जीएसटी डिटेल्स, बैंक्स एंड क्लोजर. इस तरीके के कुछ डिजाइन हमने हमारे क्लाइंट्स के लिए बनाए हैं, और बाकी जो ऑप्शंस है वो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाई दिया है. कैन यू प्लीज गाइड हाउ टू? Okay, you need to see how to add two bank details. Sure, I'll show that. Is it possible to upload self-invoice template? It is not possible to upload self-invoice, but you can create the same template using the features which you are having available with you. Like whatever letterhead you are using over there, you can just upload the image of that letterhead and get it designed. बैंक डिटेल्स का जो कंसर्न है वो ले लेते हैं. यहाँ पे while adding multiple bank details, आपको पहले तो this is the classic one. यहाँ पे आए टेम्पलेट में, एंड कमिंग टू टेम्पलेट, यहाँ पे जो कस्टम फील्ड्स है यहाँ पे आप कंपनी डिटेल्स, फुटर डिटेल्स जैसे ऐड कर पा रहे थे
सेम वेज योर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, पहले F9 पे जा रहे हैं. बैंक डिटेल्स. यो यू हैव टू गो टू ऐड और रिमूव फील्ड्स. यहाँ पे आने के बाद यू विल से बैंक, से येस टू बैंक डिटेल्स, गिव द बैंक नेम. एक पर्टिकुलर बैंक पहले सिलेक्ट कर दिया. अकाउंट होल्डर नेम अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्ले हो, तो अब यहाँ पे एक डिटेल्स दिख रहा है. सेम वेज आई गो टू ऐड. योर वी आर डन विथ वन बैंक. F4. For additional bank details, we'll have to, I guess, add field. या दिस वे यू विल बी एबल टू ऐड टू बैंक्स. मतलब एक हमने जो डिफॉल्ट का आ रहा था वो सिलेक्ट किया. कंट्रोल टी करके जूम कर देती हूँ. सी, दिस वाज द डिफॉल्ट डिटेल्स विच आर रिफ्लेक्टिंग, और यहाँ पे मैंने एडिशनली अपने फूटर में डिटेल्स ऐड कर दिए फॉर द अनदर बैंक विच आई नीड टू सिलेक्ट. ओके, दिस वे यू विल बी एबल टू कॉन्फ़िगर. एक बार करने के बाद जब आपने पूरे सारे कॉन्फ़िगरेशंस कर दिए हैं, आपने अपने हिसाब से डिफाइन कर दिया है, यू कैन ऑल्सो सेट इट एज डिफॉल्ट. अगर आप चाहते हो कि यस डिफॉल्ट में मेरा यही व्यू आना चाहिए, तो सेट इट एज डिफॉल्ट. अदरवाइज सेव द टेम्पलेट. यहाँ पे सेव करके रख देंगे माई व्यू, या जो भी आपको नाम देना है, माई टेम्पलेट, उस तरीके से आप सेव कर देंगे. एंड देन यू विल बी एबल टू सिलेक्ट कि अगर आपको नॉर्मल इनवॉइस ना देते हुए इस तरीके से separate template use करना है, तो you will be able to select. Yeah, that's my pleasure. We also had one more query to be taken care of. Let me just see. Yeah, okay. So these were some configurations to be taken care of. ये हमें एक बार डिफाइन करके हमारा टेम्पलेट सेव कर देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर यूजिंग दैट टेम्पलेट, तो वो उसी डिजाइन में आ जाए. यू डू नॉट नीड टू कॉन्फ़िगर इट अगेन एंड अगेन. या सो कमिंग बैक टू आवर चैट. अभी तक हमने जो हमारा इनवॉइस ब्रांडिंग वाला पार्ट है उसका एक ओवरव्यू ले लिया है. अभी आप अपने केस में जब डिजाइन करेंगे, तब अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, या इफ यू नीड मोर असिस्टेंस ऑन इट, then our team is available at the back end. I'll also share the support numbers with you on which you can get back to us, and we'll take care of your queries. Please, how we can add sign and stamp? Yeah, for sign and stamp, you will have to go to first select your template. Here it is. F4. Use image in footer. Okay. Just give me a moment. I'll have to check where exactly that option was. Oh, okay. Edit. Yeah, from here also you'll be able to edit. Like
you have got it into template only. Sign and stamp, the space has come into template only. And to add image over there, you can come to Control H. First, you will select your template, whichever template you want to select. Like suppose I want this template to be selected. Then I'll go to Edit Field Properties. I'll directly go to this particular field, the sign and stamp one. I'll say edit properties and I'll select the PNG or JPG image which I have for my sign and stamp. Let's say I do not have actually the image right now. I'll say CA logo only. Suppose I set this logo. So you can see it will get updated over here. This way you'll be able to add it. Okay. Any other concerns with the particular topic? Payment barcode also same way. Yes. If you have any more queries, we are waiting for a minute and then we'll go to the next topic. We also have schedule 3 to be discussed. By the time I'll just load the schedule 3 configurations data. Okay, I hope all the queries with regards to invoice branding and personalization is clear. If you have any more queries, we can either take it at the end of the session or else मैं support numbers दे दूंगी, उस पे you can get back to us. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो हमारा आज का मेजर फोकस है, दैट इज शेड्यूल 3. तो जैसे आप लोगों को पता होगा, टैली ने 6.1 रिलीज के साथ में एक अपडेट लाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनसीई. एनसीई स्टैंड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, यानी सोसाइटीज, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपको फाइल करना है, तो उसका एक मैपिंग टेम्पलेट, कंप्लीट टेम्पलेट एज पर द गवर्नमेंट फॉर्मेट वाज गिवन इनटू टैली इन 6.1. ये एक एड ऑन की तरह एस्टैब्लिश हुआ था. लाइक एनसीई का एक एड ऑन था जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना है, प्लगइन था वो, बस इंस्टॉल करना है एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डेटा इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, जो कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कंपलसरी था, या फिर यू कैन से जो उनके लिए रिलायबल है. सेम वे नाउ Tally has come up with financial statements for corporate entities, that is schedule 3 फॉर्मेट के हिसाब से. तो वो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, उसमें आपका सबसे पहला स्टेप होगा, इफ आई ब्रिंग यू टू माई पीपीटी, सबसे पहला स्टेप होगा इंस्टॉलेशन ऑफ प्लगइन, जिसके लिए वी टैली पार्टनर्स विल हेल्प यू आउट. यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड योर सीरियल नंबर्स टू अस एंड देन विल गेट द एड ऑन एस्टेब्लिश्ड. अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्लगइन आपके पास आ गया है या नहीं? इधर हमारी तरफ से फोन आके इन्फॉर्म तो होगा ही. एडिशनली हाउ यू कैन चेक इट एट योर प्लेस, आपको सिर्फ अपना लाइसेंस अपडेट करना है. यू हैव टू गो टू सेटिंग्स, लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस, एंड यहाँ से आप अपना लाइसेंस को अपडेट कर देंगे. F5 उसका शॉर्टकट है. ठीक है, लाइसेंस अपडेट होने के बाद अगेन यू विल गो टू F1. यहाँ पे आपको दिखता है टैली प्लगइन्स. टैली प्लगइन्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर प्लगइन लोडेड दिखेगा, शेड्यूल 3 का. ठीक है, ये लोड हो जाने के बाद यू हैव टू अपडेट योर लाइसेंस, वो हो गया है. एंड देन कमिंग टू हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट द डेटा, यू विल गो टू एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट. यहाँ पे आप आएंगे, यू विल से एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट जब आप करेंगे, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. इफ यू वांटेड फॉर नॉन कॉर्पोरेट, यू विल गो फॉर सेकेंड ऑप्शन. अगर आपको कॉर्पोरेट एंटिटीज लाइक प्राइवेट लिमिटेड एंड लिमिटेड कंपनीज के लिए चाहिए तो यू विल गो फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू विल सिलेक्ट शेड्यूल 3. जब आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसा भी डिटेल्स आपको चाहिए ये यहीं पे कॉन्फ़िगर होगा. सो दिस स्क्रीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन. इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, बिकॉज ऑल द डेटा विच इज गोइंग टू गेट एक्सट्रैक्टेड विल बी ऑन द बेस्ड विल बी ऑन द बेसिस व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग ओवर हियर.
यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि जो भी जीरो बैलेंसेस के लेजर है वो एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए, तो दैट विल नॉट कम। सो मुझे टेक केयर करना है कि यहाँ का मेरा सारा कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर हो। सबसे पहले यहाँ आके आपको शो मोर पे क्लिक कर लेना है ताकि सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाए। देन अगर आपने ये पर्टिकुलर एंटिटी का डेटा लाइक द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दोनों एक साथ रखा है, कंपनी अगर स्प्लिट नहीं हुई है, देन यू विल गो फॉर दिस ऑप्शन कि करंट एंड प्रीवियस ईयर। अगर आपको ओनली करंट ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो ओनली करंट ईयर, ओनली प्रीवियस ईयर करना है तो ओनली प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब मैं करंट एंड प्रीवियस दोनों एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, सो आई विल बी सिलेक्टिंग करंट एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, करंट ईयर का एंड डेट क्या है वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। एंड अगर मैंने मेरा प्रीवियस ईयर का जो डेटा है वो सेपरेट कर दिया है, मतलब मैंने एंटिटीज को ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया है, तो आई नीड टू से येस टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, सॉरी दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। एंड मेरी जो सेकंड कंपनी है लाइक 24-25 का डेटा अगर इसमें है, तो 23-24 का डेटा जिस कंपनी में होगा वो पर्टिकुलर कंपनी भी साथ में एट द सेम टाइम लोडेड होनी चाहिए। मतलब दोनों कंपनीज अगर ओपन है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सी कि वो कंपनी की लिस्ट यहाँ पे आपको मिले। यस करते ही वो जो भी कंपनी लोडेड है वो यहाँ पे दिखेगी। यू विल सिलेक्ट कि एम ट्रायल की सेकंड कंपनी है वो मुझे सिलेक्ट करनी है जिसका क्लोजिंग ईयर ये है। ठीक है, आफ्टर डूइंग दैट अगर आपको लेजर्स जो कि जीरो बैलेंस की है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है वो ट्रायल बैलेंस में चाहिए, तो मेक इट यस, अदरवाइज कीप इट नो। ठीक है, देन कमिंग टू सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का जो डिटेल है वो आप पार्टी वाइज देखना चाहते हैं या बिल वाइज देखना चाहते हैं। अगर यू वांटेड बिल वाइज, सिलेक्ट बिल वाइज, अगर पार्टी वाइज चाहिए सिलेक्ट पार्टी वाइज। ठीक है, जो स्टॉक डिटेल्स है वो आइटम वाइज चाहिए या लेजर वाइज चाहिए, बोथ दी ऑप्शंस आर अवेलेबल। प्रेस एंटर, इट विल चेंज। अगर आइटम चाहिए तो आइटम, एंटर करेंगे तो लेजर। ठीक है, जिस तरीके से आपको चाहिए। देन कमिंग टू अगर आपको स्टॉक आइटम्स एंड लेजर्स की टोटल वैल्यू जो है वो एक्सपोर्ट करना है, से येस टू दिस। इफ यू डू नॉट वांट टू एक्सपोर्ट दैट, से नो। अब अगर जीरो बैलेंस को एक्सक्लूड करना है तो येस नो का कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आना है ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट को यस करना है ताकि जैसे ही एक्सपोर्ट हो वो पर्टिकुलर फाइल आपके लिए ओपन हो जाए। मैं कंट्रोल ए कर रही हूँ एंड एक्सपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्सेल है वो मैक्रोज एनेबल्ड है, जिसके अंदर सारे फॉर्मूलाज फिट है, कोड हुआ है, ताकि आई कैन प्रॉपरली डिफाइन एंड गेट माई डिटेल्स रेडी। माई बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस का पूरा फॉर्मेट एज पर दी शेड्यूल 3 रेडी हो जाएगा। बाय दी टाइम अगर आपको अभी तक के प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क। Whether this will be formula based, it is actually macro enabled, तो formulas automatically उसमें फीडेड है। यस, अब ये शीट ओपन होने के बाद किस तरीके का लुक होगा, द फर्स्ट स्क्रीन जो आप लोगों के लिए विजिबल होगी दैट विल बी द इंडेक्स। अब इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि क्योंकि इंडेक्स ही आपको सारी शीट्स तक लेके जाएगा एंड इंडेक्स विल हेल्प यू टू नेविगेट। ठीक है, सबसे पहले यू विल कम टू इंडेक्स। इंडेक्स पे आने के बाद जितनी भी चीजें इसमें है लाइक मैपिंग शीट्स कितनी है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यू विल सी, यू विल सेव एंड क्लोज। अब यहाँ पे यू हैव टू कम टू द नेक्स्ट शीट विच इज रीडमी। रीडमी में इस टेम्पलेट को कैसे यूज करना है वो प्रॉपरली डिफाइंड। सी, सबसे इंपॉर्टेंट शीट रीडमी में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट कि इस पर्टिकुलर रिलीज के नोट्स, मतलब शेड्यूल 3 के जो नोट्स है। अगर आप अभी पोर्टल पे जाके लाइक इफ यू गो टू टैली सॉल्यूशंस एंड इफ यू सी, तो आपको शेड्यूल 3 का सिर्फ एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो मिल रहा है। बट इफ यू गो टू रिलीज नोट्स फ्रॉम हियर, यहाँ पे अगर मैं रिलीज नोट्स पे क्लिक कर रही हूँ, इट विल ऑटोमेटिकली टेक मी टू द कंप्लीट हेल्प आर्टिकल। सी, अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो ये पूरा मुझे जनरेट कंप्लायंस रेडी पे क्लिक करते ही इट विल गिव मी 8 मिनट रीड फुल आर्टिकल, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एड ऑन को एनेबल करने से लेके कंप्लीट गाइडेंस विद द स्क्रीनशॉट्स विद द वीडियोस आई गेट कि मुझे कौन सा ऑप्शन कॉन्फ़िगर करना है एंड कैसे कॉन्फ़िगर करना है।
आई ऑल्सो शेयर दिस एट द एंड। इसका जो लिंक है वो मैं लास्ट में शेयर कर दूंगी, ताकि आपको बाद में कभी भी रेफर करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस। ठीक है, कमिंग बैक, यहाँ पे आ जाते हैं। इफ यू नीड वीडियोस देन यू विल हैव टू क्लिक टू लिंक टू वीडियोस, यू विल गेट द वीडियोस ओवर देयर। एफएक्यूज अगर आप देखना चाहते हैं देन यू कैन गो टू एफएक्यूज। ये कंटेंट के लिए है बेसिकली। एंड देन कमिंग टू हाउ टू यूज दिस टेम्पलेट, सबसे पहले यू हैव टू ओपन द बेसिक इन्फो शीट। There is something in the chat. Can you share for NCP as well? Okay, you are asking me for NCE. That means non-corporate entities, right? For that, we already have a dedicated video on our YouTube channel. I'll just share the link of that with you so that you can go through. Sure. Chalo, now coming back to how to use this template. सबसे पहले you have to open the basic info sheet. Basic info sheet के लिए आप index पे आ जाएंगे। Here you are able to see, ये है बेसिक इन्फो की शीट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, ये आपका फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन का स्क्रीन है, जहाँ पे जितनी चीजें कंपनी में हमने फिल कर दी थी वो तो फैच हो गई है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट विच इज पेंडिंग इज द सिग्नेटरी डिटेल्स। लेट्स से मैं अभी मेरे सिग्नेटरी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। ओके, हिज डेजिग्नेशन इज ऑडिटर। लेट्स सपोज दिस इज हिज DNI नंबर, ऑडिट फर्म, ओके, firm registration number. This is the firm registration number. Okay, and this is the place. ये डिटेल्स मैंने अपडेट कर दी। अपडेट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन अपडेट सिग्नेटरीज ओवर हियर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब ये पर्टिकुलर डेटा जो आपने फीड किया है वो सेव होगा, एंड यू विल गेट अ मैसेज ओवर हियर कि ये डिटेल्स अपडेट हो गई है। देन सेम विल हैपन विद द शेयर कैपिटल डिटेल्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या है, उसकी फेस वैल्यूज क्या है, वो चीज़ें आप अपडेट करेंगे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन अपडेट शेयर कैपिटल। तो ये पर्टिकुलर डिटेल्स जो आपने फीड की कि प्रेफरेंस शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स थे, उनकी फेस वैल्यू क्या थी, वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस अगेन कम बैक टू इंडेक्स। इंडेक्स पे आने के बाद यू विल एबल टू सी कि हमने बेसिक इन्फो वाली शीट तो कंप्लीट कर दी है। उसके बाद में जो शीट्स हमें ऑपरेट करनी है वो होंगी हमारी ट्रायल बैलेंस करंट ईयर, ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर, शेयर कैपिटल इनपुट शीट्स। अब ये सारी चीज़ों पे जाने के लिए फर्स्टली यू विल हैव टू बी ऑन इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में वो मैक्रो एनेबल किए गए हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दैट शीट। अगर अभी आप देखेंगे तो मेरे एक्सेल में सिर्फ दो शीट्स ओपन है, विच इज इंडेक्स एंड अ रीड मी। अब मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ ट्रायल बैलेंस करंट ईयर, तो आप देख रहे हैं एडिशनल एक शीट एनेबल हो गई, वेर इन आई एम एबल टू सी माई ट्रायल बैलेंस फॉर द करंट ईयर। अब क्या करना है, यू हैव टू मैप इट वंस। मतलब अगर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों के लिए आपको मैपिंग चाहिए तो यू गो विथ ईदर ऑफ द वन। या तो आप प्रीवियस ईयर के लिए मैपिंग कर लीजिए या फिर करंट ईयर के लिए मैपिंग कर लीजिए। एक का मैपिंग करके यू कैन सेव इट एंड गेट इट पेस्टेड ऑन द सेकेंड वन। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे यू हैव द ऑप्शन अपडेट मैपिंग। आप अपडेट मैपिंग पे क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क कि वेयर डू यू वांट टू अपडेट दिस मैपिंग। तो वो अपडेट करने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट कि ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर, तो इट विल गेट अपडेटेड ऑन द ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर। अब मैप करना कैसे, दैट विल बी योर कंसर्न। तो सबसे पहले यू हैव टू कम ओवर ईयर, यू हैव टू जस्ट सी कि कितनी फील्ड्स आपके लिए रेलेवेंट है। आपको अभी देखना जरूरी है, जितनी फील्ड्स उनको आप सामने रखेंगे, रिमेनिंग फील्ड्स को आप हाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, हियर यू हैव गॉट द ऑप्शन। जैसे मान लीजिए ABCD इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, पेरेंट्स ग्रुप है, मेन ग्रुप है, तो इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आई विल गो विथ FGHI जो है ये मुझे नहीं चाहिए, सो आई विल से माइनस। मैंने माइनस क्लिक करते ही आप देख पाएंगे उतनी जो फील्ड्स थी दैट हैव गॉट हिडन, वो हाइड हो चुकी है। अब जो रिमेनिंग फील्ड्स है जिसपे मुझे काम करना है, दोज आर इन फ्रंट ऑफ मी। अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये ग्रुप है, ये नेचर ऑफ ग्रुप है, ये मेन ग्रुप, पेरेंट्स ग्रुप, ये सब आ गया है। तो अब यहाँ पे प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स वाइल मेकिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आपके कुछ भी फाइनेंस प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे ऑडिट पे जो एक्सपेंसेस हुए हैं जो कि अभी तक आपने टैली में जिनको ऐड नहीं किया है, वो प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड देन उसको बाइफरकेट कर सकते हैं वेदर इट इज नॉन करेक्ट, नॉन करंट और करंट। ठीक है,
फिर आपकी मैपिंग डिटेल्स की मेन जो क्लासिफिकेशंस है वो यहाँ पे है। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन वाज स्टॉक इन हैंड। तो स्टॉक इन हैंड मेरा इन्वेंट्रीज में आ गया है, क्लासिफिकेशन 1 मतलब मेन ग्रुप। देन एज पर स्टॉक शीट यहाँ पे मेरे को क्लासिफिकेशन 2 जो सिलेक्ट करना है, आई बी एबल टू सिलेक्ट क्लासिफिकेशन 3 एज वेल। जैसे मैंने यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लिया, यहाँ पे पहले देख लिया कि कौन सा पर्टिकुलर आइटम या कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप है। ठीक है, योर आई सिलेक्टेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पे अगर मुझे कोई एडिशनल ग्रुप मैप करना है, जैसे अदर लायबिलिटीज है, तो अदर लायबिलिटीज में कौन सा है, इज इट सैलरी पेएबल, इज इट टीडीएस टीसीएस पेएबल, जीएसटी पेएबल, जो भी ग्रुप है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। यू विल गेट द सिलेक्शन, ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है। यू विल जस्ट सिलेक्ट कि ये पर्टिकुलर पेएबल क्लासिफिकेशन में जाना चाहिए। इट विल ऑल्सो आस्क यू कि सेम मैपिंग क्या आप जितने भी अदर लायबिलिटीज है उस पर कॉपी करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू डू दैट यस तो यस, नहीं तो नो रख दीजिए। तो यू विल बी एबल टू सिलेक्ट फॉर ईच एंड एवरी वन। मान लो ये मेरा सैलरीज पेएबल है, ये मेरा जीएसटी पेएबल है, यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द वंस विच यू फील। ठीक है, इस तरीके से मेन हेड आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज में ये इसका लेजर नेम हो गया। अब ये पर्टिकुलर लेजर मेरा कौन से ग्रुप में जाना चाहिए, कौन सा क्लासिफिकेशन ग्रुप उसका होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप मैप करते जाएंगे एंड योर, हम देखते हैं अगर आपने C2 सिलेक्ट करने के बाद भी, लाइक सपोज यहाँ पे अगर अदर्स का ऑप्शन है और आपने अदर्स सिलेक्ट कर लिया है, तो फिर यू हैव टू सिलेक्ट क्लासिफिकेशन 3 एज वेल कि अदर्स में कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इन केस अगर यहीं पे आपने मैप कर दिया है तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि क्लासिफिकेशन 3 भी आप करो। बट अगर यहाँ पे आपने अदर्स या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब करेंगे ऐसा कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो यू विल हैव टू कंपल्सरीली गेट दिस फील्ड। ठीक है, नाउ I'll just take you to the unmapped part जो कैसा दिखता है आपको पता चले। It will reflect into yellow color। एक मिनट, what we can do is we can download a new one। I have multiple branches and maintain separate tally data for each branch under a single company। Okay, you have multiple branches and you have maintained separate tally data for each branch। Okay, getting it into a consolidated report will, actually it is not likely possible, but we'll have to check on this particular situation। I'll request you to get back to us personally so that we can work on your query। Okay, yeah, cost center they have already maintained। We have two separate books and tally can we get consolidated financials। If you're having two separate books, like you have kept separate companies into tally, right? So getting it consolidated is not likely possible. Here, if you are like being a same entity, if you have separated the data, then that is possible क्योंकि वहां पे सिर्फ ईयर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट एंटिटीज। आई एम एक्चुअली नॉट श्योर फॉर दिस बट विल चेक ऑन दिस। The license for beta version, you'll have to contact us, sir। I'll just ask the TallyCare team to get your serial number compiled with the particular plugin, and then you'll be able to use it। Okay, you are having different books. No worries, you can just get back to us so that we can individually check out on your issue। Yes, so coming over here, let's say मैं वापस ट्रायल बैलेंस पे जाती हूँ। हाँ, वो पर्टिकुलर शीट आई हैड ऑलरेडी मैप्ड, तो इसकी वजह से ये जो अनमैप का स्टेटस है वो उसमें से निकल गया था। अगर आप एक फ्रेश शीट डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यू विल हैव येलो कलर, जो भी मैप नहीं है उस पे यू विल सी की वैल्यूज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है और वो येलो में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड एट द लास्ट यहाँ पे जो स्टेटस है वो अनमैप्ड करके रिफ्लेक्ट होगा। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यहाँ पे आप उसको बाइफोकेट कर देंगे कि वो नॉन करंट करंट क्या वैल्यूज है वो बाइफोकेट कर दिया, एंड योर यू विल मैप इट।
जैसे मैं इसको बोलती हूँ कि ये सैलरीज पेएबल है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसको अपडेट किया, यहाँ से जो अनमैप्ड वाला पार्ट था वो रिमूव हो गया। ठीक है, दिस वे आई बी एबल टू चेंज जो भी मेरा ग्रुप से मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे भी सब जितने भी अनमैप्ड है, सबसे पहले मुझे उनका मैपिंग करना होगा ताकि वो एक ग्रुप क्लियर हो जाए। एंड आफ्टर क्लियरिंग आउट द ग्रुप आई हैव टू कम टू दी क्लोजिंग बैलेंसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट कितना वैल्यू हुआ है एंड क्रेडिट कितना हुआ है, वो मैंने डिफाइन नहीं किया है। तो अगर कोई भी प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स होती है तो वो डेबिट हुई है या क्रेडिट हुई है, वो वैल्यू डिफाइन करने के बाद माई क्लोजिंग बैलेंस विल गेट चेंज। जैसे अगर यहाँ पे कुछ 50,000 है, तो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल क्लोजिंग जो था वो 35 से 85 हो गया, एडिंग दिस 50। तो सेम वेज अगर जितना भी आपका कुछ प्रोविजनल होता है, दैट पर्टिकुलर वैल्यूज यू विल ऐड ओवर ईयर एंड अकॉर्डिंगली योर बैलेंसेस विल गेट अपडेटेड। एंड देन उसको करंट या नॉन करंट में आप बाइफर्केट कर देंगे। जैसे ही आप इसको यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ का जो अनमैप्ड स्टेटस था वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन कमिंग बैक टू द रीडमी अगेन, ट्रायल बैलेंस पी सी वाई पी वाई तो आप कर लेंगे। देन कमिंग टू द शेयर कैपिटल इनपुट शीट्स, वो कैसी दिखती है एंड उसको कैसे मैप करना है उस पर भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे यू हैव टू ऑलवेज कम टू द इंडेक्स शीट। यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल, अगर आप ऑथोराइज्ड इशूड सब्सक्राइब वो वाला इनपुट शीट देखना चाहते हैं तो यू विल कम टू दी फर्स्ट वन। फर्स्ट शीट पे आते ही ईयर आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने जो मेरा इंडेक्स शीट था, जो हमने ये वाला डिफाइन किया था बेसिक इन्फो, इसमें मैंने टाइप्स ऑफ शेयर्स और कुछ डिफाइन नहीं किए थे फेस वैल्यूज, दैट्स व्हाई देयर नो डेटा इज रिफ्लेक्टिंग ओवर देयर। बट अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट्स से ऑथोराइज्ड, यहाँ पे अगर आपने डिस्क्राइब किया होगा एंड अपडेट शेयर कैपिटल किया होगा, तो जो भी चीजें आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, ओके मे बी लेट्स नॉट सेव इट। ओके, लेट दिस गेट कंप्लीटेड। हाँ, यहाँ पे जब आप डिफाइन करेंगे एंड इसको अपडेट शेयर कैपिटल करेंगे, तो आपके जो शेयर कैपिटल रिपोर्ट्स है उसमें वो पर्टिकुलर चीज अपडेट हो जाएगी। हाँ, ओके, इसमें वापस एक बार शीट को ओपन कर लेती हूँ। इसका पाथ था ई टैली प्राइम 7.1, इसको तो ई टैली प्राइम। या यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे आपका पर्टिकुलर शीट, तो वहाँ पे वो चीज़ें अपडेट हो जाएगी। जैसे आपने देखा मैंने ऑथोराइज्ड अपडेट किया था, तो ऑथोराइज्ड की वैल्यूज यहाँ पे आ गई है। सेम वेज में आप जितने भी यहाँ पे अपलोड करेंगे कि यस कैपिटल कितना था एंड व्हाट वर योर इशूड शेयर्स कितने थे, वो सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन यहीं से इफ़ यू वांट टू गो टू जहाँ पे भी लाइक बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो, वो पर्टिकुलर फील्ड पे आप क्लिक करेंगे, इट विल टेक यू टू दैट पर्टिकुलर शीट। सो आपके लिए नेविगेशन मेनली आपके इंडेक्स वाली शीट से होने वाला है, क्योंकि आपके इनपुट शीट्स सारी ही आपके इंडेक्स शीट पे होंगी। एंड जो प्रोसीजर है, जो टेम्पलेट हमें फॉलो करना है कि सबसे पहले वी आर गोइंग टू चेक ऑन ट्रायल बैलेंस, वो सब आपको आपकी रीडमी शीट में मिलेगा। कि फर्स्टली आपने बेसिक इन्फो फिल किया, देन यू वेंट टू योर शेयर कैपिटल डिटेल्स जितने भी थे वो आपने अपडेट कर दिए, देन यू केम टू ट्रायल बैलेंस करंट ईयर प्रीवियस ईयर। फिर उसके बाद आपका मैपिंग हो जाने के बाद प्रोविजनल एडजस्टमेंट्स अगर कुछ हुए हैं तो वो यू विल क्लोज, एंड देन आपका अनमैप का स्टेटस निकल जाएगा। देन कमिंग टू दी सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर स्टॉक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स क्रेडिटर्स को मैप करने के लिए भी यू विल गो टू इंडेक्स ओनली। यहाँ पे आप डेटर्स करंट ईयर पे क्लिक करेंगे तो आपके करंट ईयर के जितने भी डेटर्स है उसकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने जो हेडिंग्स दिए हुए हैं, लाइक
यहाँ पे मैंने दिया है सन्ड्री डेटर्स गुलालवाड़ी। देन जो मेरी पार्टीज है वो मैंने सिलेक्ट की है। अनड्यू कितना है, अनबिल्ड कितना है, अमाउंट मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। लेट्स से 3894 है, तो मैं यहाँ पे 3894 लेके लेस देन 6 मंथ्स में 3000 ले लेती हूँ। यहाँ पे एल से 3000। एंड जो 894 है वो हम नेक्स्ट ईयर में ले लेते हैं, लेट्स से 1 और 2 ईयर्स पे 894। इस तरीके से आप मैप करेंगे तो ये जो टोटल्स है यहाँ पे दैट विल ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड। जो भी डिटेल्स आप इधर फीड कर रहे हैं नीचे, उसके बेस पे ये वाले कैलकुलेशंस हो जाएंगे। एंड आपके जो मैपिंग है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी कि ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन 1 है, 2 है एंड करंट मैपिंग स्टेटस। दिस वेज यू विल हैव टू डिफाइन सारे जितने भी आपके डेटर्स हैं उनकी जितने भी अनबिल्ड और अनड्यू वैल्यूज है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये पर्टिकुलर टोटल्स जो है ये लास्ट क्लोजिंग है, उस बेस पे कितने मंथ्स या कितने पीरियड्स पुराना है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। एजिंग पिकअप नहीं करता है। अगर आप ये वाला ऑप्शन टोटल वैल्यूज वाला ऑप्शन नो रखेंगे ना, यू विल हैव टू टेक इट बिल वाइज। फिर अभी हमने क्या किया था, हमने लेजर वाइज लिया था जब यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया था। ये वाला जो ऑप्शन था सन्ड्री डेटर्स के लिए, ये हमने पार्टी वाइज लिया था। यू विल हैव टू टेक इट बिल वाइज, तो फिर वो एजिंग ले लेगा। बिल बाय बिल डिटेल्स आ जाएंगे। या ठीक है। देन कमिंग बैक टू आर एक्सेल। यस, आपका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वाला। फाइनली आपको सारी मैपिंग कंप्लीट होने के बाद नोट्स जो जनरेट करने हैं उसके लिए आपका ऑप्शन रहेगा इंडेक्स शीट पे। जनरेट ऑल नोट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके नोट्स जनरेट होंगे, और अगर आपको एक्सपोर्ट या प्रिंट करना है पीडीएफ या फिर एक्सेल में, तो वो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट और प्रिंट के थ्रू करना पड़ेगा। यहाँ पे मैपिंग कंप्लीट करना है पहले। मैपिंग कंप्लीट करने के बाद जो आपका ट्रायल बैलेंस का डेटा था वो पॉपुलेट हो गया ट्रायल बैलेंस से करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर में। देन सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया, लाइक जनरेट ऑल नोट्स अगर आपको करना है तो उसके लिए यू विल हैव टू कम टू इंडेक्स, यहाँ से जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद यू विल हैव टू से सेव नोट। मैंने अगर जनरेट कर लिया, कैपिटल नोट जनरेट हो रहे हैं। एक्चुअली मैंने तो डेटा फीड किया नहीं है। जब आप डेटा फीड करेंगे इट विल ऑल्सो आस्क यू फॉर सेविंग नोट्स। लेट इट गेट जनरेटेड। सेव नोट्स का ऑप्शन आ जाएगा वहां पे, वो आपको सेव कर लेना है। एंड देन इफ यू विश टू एक्सपोर्ट इट इन अ पीडीएफ और एक्सेल फॉर्मेट, नॉर्मल एक्सेल विदाउट मैक्रोस, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका प्रिंट लेके, हाँ सी आई हैव नॉट गिवन एनी हेडर ओवर हियर। टू सी दिस पार्ट वी कैन गो टू आर नोट्स। सी यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला पार्ट है जनरेट नोट्स, यहाँ पे आप आएंगे एक्सपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले आपको जनरेट कर लेना है नोट्स इस पे क्लिक करके। फिर नोट्स जनरेट होने के बाद में यू विल सेव नोट्स। सेव करने के बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ या फिर एक्सेल फॉर्मेट में, जैसे आप चाहें। जो आप एक्सपोर्ट टू एमएस एक्सेल अगर आप करेंगे तो उसमें वो पर्टिकुलर शीट में आपके ये जो फॉर्मूलाज या लिंक्ड वर्कशीट्स है वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। इट विल नॉट इंक्लूड दी फॉर्मूलाज। आई जस्ट शेयर दिस ऑल्सो, ये हमें शेयर करना था आपसे। इसको सिलेक्ट करके जूम पे, जूम के चैट में मैं ये डाल देती हूँ जो इसका आर्टिकल है ना शेड्यूल 3 का। ये देखिए जूम पे मैंने आर्टिकल की लिंक शेयर कर दी है। टीडीएल एड ऑन एनेबल करने के लिए यू कैन गेट बैक टू अस, तो फिर वो प्लगइन एनेबल हो जाएगा। वी हैव डन फॉर
many clients, like of about 10 to 15 clients ने already वो बीटा वर्जन इंस्टॉल करके उस पे enable करवा लिया है ये एड ऑन. I also have it for my personal serial number. इसमें एक्सेल शीट बताइए ना जो जनरेट किया हो. Okay, आप इसकी बात कर रहे हैं. ये अभी नोट्स. जी जी. अभी जो कॉन्फ़िगर किया है या तो आपने सेव करके रखा होएगा कोई भी. जी जी, ये जो अभी सामने ओपन है ये वो एक्सेल है. यहाँ पे जो आप देख रहे ओके. हैं ये नोट्स फॉर्म हुआ है. हाँ. ये देखिए मटीरियल, जब आप जनरेट नोट्स करेंगे ना उसके बाद में ये शीट्स ऐड हो जाएगी. जैसे आपने पहले अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 शीट्स थी, रीडमी एंड इंडेक्स. और जो आपने राइट. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पे एक्शन लिया है वो पर्टिकुलर शीट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी. नोट्स जनरेट करने के बाद में मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स और ये सारे जितने भी नोट्स है, शेयर कैपिटल के नोट्स, ये सारी ऑटोमेटिकली जनरेटेड शीट्स है. हाँ. ये रिजर्व्स एंड सरप्लस आउटपुट है, बोरोइंग्स, ट्रेड रिसीवेबल नोट्स, ये सारे नोट्स आपके जनरेट होंगे. एंड देन ये देखिए ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, शॉर्ट टर्म. सारी चीजें जनरेट होने के बाद वापस इंडेक्स पे ही, कहीं से भी अगर आपको इंडेक्स पे जाना है यू विल जस्ट कम ओवर हियर. या मेरे इसमें सेल रेफरेंसेस कैसे मिलेंगे अगर मैं बैलेंस शीट से शेड्यूल पे जाता हूँ. हम्म. करेक्ट. तो पर्टिकुलर शेड्यूल में ब्रेकअप क्या है, हाउ डू आई नो. एग्जैक्टली किस चीज का ब्रेकअप देखना है आपको, लाइक बैलेंस शीट में कौन अभी से. हाँ. फिक्स हाँ. असेट्स शेड्यूल देखना है मेरे. ओके. बैलेंस शीट में आ जाइए. हाँ. बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स है नहीं. एक स्टिल मिनट, बैलेंस शीट ओपन हो रहा है. यहाँ से नहीं जा सकते, आपके सीट रिफर की है. सॉरी. शेयर कैपिटल इनपुट, हाँ यहाँ पर. हाँ ये मैंने बैलेंस किया शीट. किया क्लिक किया उस पर. ओके. एक मिनट, इसको बंद करके रीस्टार्ट कर लेते हैं. हम्म. हाँ, यहाँ पर फिक्स असेट्स शेड्यूल रहेगा. हम्म. हाँ, असेट्स में नॉन करंट असेट्स, करेक्ट. हम्म. यहाँ पर इतना कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, ये जो है 405354 जी. प्लांट्स प्रॉपर्टी में, हम्म. अच्छा, इसका इसका शेड्यूल ब्रेकअप. पेज. हाँ, इसका शेड्यूल पे जाना या नोट्स पे. मैंने एक्चुअली जो नोट्स अभी आए भी थे वो भी सेव नहीं हुए इसमें. ठीक है, एक मिनट. We require grouping of particular assets. आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? This is current liability. This is, हाँ, ग्रुपिंग्स अगर चाहिए there तो is, ग्रुप. हाँ बोलिए बोलिए. see, there are fixed assets. There must be one moment. Come down. हम्म. फिक्स्ड एसेट्स है यहाँ पे. हाँ, राइट. राइट. ये ब्रेकअप मेरे को नोट्स में या शेड्यूल में चाहिए. ओके. हाँ, ये पीपी में ग्रुप वन लाइन में आ गया. बट जी. इफ आई वांट टू चेक इन माय शेड्यूल, बिकॉज ओके. ये एवरी टाइम ट्रायल बैलेंस रिफर नहीं होएगी. जी.
तो ये जब आप मैप करेंगे ना ये पर्टिकुलर हाँ वैल्यूज को, वो मैप करने के बाद जो जनरेट ऑल नोट्स होंगे, जैसे अभी हमने हाँ सिर्फ शेयर के नोट्स जनरेट किए, ठीक है। सारी मैपिंग करने के बाद जब आप सेव मैपिंग करेंगे, जैसे इधर एक ऑप्शन था टू अपडेट मैपिंग, मैं एक हाँ मिनट आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। हाँ ये देखिए, ये जो अपडेट मैपिंग है ना, अपडेट मैपिंग मैपिंग जब आप करेंगे तो जितना भी मैपिंग आपने किया है वो सेव होगा। एंड सेव होने के बाद में जब आप जनरेट ऑल नोट्स करेंगे तो वो पर्टिकुलर नोट्स में आपको ब्रेकअप मिल जाएगा। ओके। यहाँ पे जो मिलेगी ट्रायल बैलेंस में वो सिर्फ समरी रहेगी बेस्ड ऑन दी लास्ट फाइनल वैल्यूज, जो 31 मार्च की वैल्यूज है उस बेस पे एक समरी रहेगी। ठीक है ठीक है। हाँ बट ओनली मैपिंग होने के बाद में ही जी जी, वो यस, एस्टेब्लिश मैपिंग हो होने जाए के बाद वो जैसे फिर। आपने देखा ना शेयर में भी हमने शेयर कैपिटल वैल्यूज जब डिफाइन की तब रिपोर्ट्स में कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। ओके। हाँ जैसे अभी ये इनपुट शीट्स है, मैं इनको ओपन करूंगी तो जैसे जो मैंने डिफाइन कर दिया था उसकी वैल्यूज दिख रही है, बाकी सब कुछ ब्लैंक है। तो ये अगर मैंने वहां पे मैप कर लिया है मेरे शेयर कैपिटल की शीट्स में, तो फिर मेरा जो आउटपुट रिजल्ट है, जो नोट्स जनरेट होंगे उसके अंदर ये समरी, इस समरी पे बेस्ड रिजल्ट आ जाएगा। एंड कैन आई जनरेट कॉस्ट सेंटर वाइज, यानी सपोज कि कॉस्ट मेरे सेंटर वाइज फिनेंशियल। एक्चुअली वी हैव नॉट येट ट्राइड फॉर कॉस्ट सेंटर। ओके। तो अगर ऐसा कुछ केस है तो आप मुझे एक बार अल्ट्रा व्यूअर के थ्रू आपका एक्सेस प्रोवाइड कर दीजिए, तो फिर हम चेक कर लेंगे कि कॉस्ट सेंटर वाइज इज इट पॉसिबल, बिकॉज वी हैवंट येट ट्राइड फॉर एनी ऑफ आवर क्लाइंट, कॉस्ट सेंटर वाइज हमने नहीं किया है। इज व्हाट आई मीन, कॉस्ट सेंटर या तो प्रोडक्ट या तो प्रॉफिट सेंटर। ओके। जनरली हम लोग ये सारी बैलेंस शीट बनाते इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज एंड जी। देन वी कंसोलिडेट। ओके ठीक है, सो फॉर प्रोडक्ट वाइज या कॉस्ट सेंटर वाइज अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप मुझे एक बार अल्ट्रा व्यूअर एक्सेस प्रोवाइड कर दीजिएगा। वी कैन चेक विद द टैली केयर टीम इफ इट इज पॉसिबल। ओके। ठीक है। फाइन फाइन मैम, थैंक्स। यस सो यहाँ पे आपका मेन यही रहेगा कि आपको टेम्पलेट के हिसाब से जैसे इन्होंने गाइड किया है उस वे में पूरी टेम्पलेट की मैपिंग कर लेनी है। मैपिंग करने के बाद जो आप जनरेट करेंगे रिजल्ट्स वो कंप्लीट रहेंगे अगर आपकी मैपिंग प्रॉपर हुई है। तो हमें टेक केयर ये करना है कि अनमैप्ड स्टेटस निकल जाना चाहिए सब जगह से, और ये जो येलो ब्लैंक फील्ड्स है ये फिल हो जानी चाहिए विद दी वैल्यूज। ये सारी चीजें होने के बाद आपको एवरी टाइम क्या करना है, हर बार का करंट ईयर जो है, मे इट बी फॉर डेटर्स क्रेडिटर्स या मे इट बी फॉर ट्रायल बैलेंस, आपको करंट ईयर का जो फील्ड है उसको मैप कर लेना है एंड फिर अपडेट मैपिंग सिलेक्ट करके ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर पे वो चीज कॉपी कर देनी है। यू डू नॉट हैव टू मैप इट अगेन। ये उन्होंने नॉन कॉपरेट के लिए भी सेम वेज में दिया था। नॉन कॉपरेट में भी अगर आपने एक बार मैपिंग कर दिया है, मे इट बी फॉर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, कहीं पे भी एक बार अगर आपने मैपिंग कर दिया है तो सेकेंड टाइम आपको दोबारा मैप करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी ऑटो फेच्ड। सेव मैपिंग करके अगर आप पेस्ट करेंगे तो इट विल गेट पेस्टेड ऑन दी सेकेंड पार्ट। सो इस तरीके से ये शेड्यूल 3 का जो एक्सेल है वो वर्क करेगा। हमारे जो दो मेजर कंसर्न्स थे आज के वो तो डिस्कस हो गया है, और जिन्होंने प्रीवियस सेशन मिस कर दिया था उनके लिए एक शॉर्ट रिकैप हम कर देते हैं जो प्रीवियस फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। सो एक न्यू फीचर जो इंट्रोड्यूस हुआ है टैली में, दैट इज ऑटो रैप टेक्स्ट। ऑटो रैप टेक्स्ट का बेसिक मतलब इतना ही है कि अगर आपके कोई भी स्टॉक आइटम, प्रोडक्ट, लेजर कुछ भी है जिसका बहुत बड़ा नाम है जो कि टैली में श्रिंक हो रहा है, तो वो अभी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे ड्रैग करके उसको प्रॉपरली अलाइन कर देगा। लाइक इफ आई गो टू माई डेटा, यहाँ पे मेरे जो स्टॉक आइटम्स है आप देख सकते हैं, मेरे स्टॉक आइटम में मैंने थिकनेस, वैल्यू, फिर उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, द मेजरमेंट यूनिट जिसमें वो डिस्क्राइब होता है, एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड इन माय आइटम्स नेम ओनली। तो वो क्या हो रहा था, यहाँ पे आकर के वो श्रिंक हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाहर तो ब्लैक तक पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड इसको मैं एंटर कर रही हूँ तो नेक्स्ट लाइन पे वो ड्रैग कर ले रहा है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग श्रिंक्ड ओवर देयर ओनली, रीड ना कर पाऊँ उससे अच्छा इट इज टेकिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट।
तो ये वाला जो फीचर है दैट इज ऑटो रैप, ये आप टेक्स्ट पे, लेजर पे, डिस्क्रिप्शन पे सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। इसको एनेबल करने के लिए यहीं पे आपको आना है, यू हैव टू कम टू सेटिंग्स। आफ्टर कमिंग टू सेटिंग्स, गो टू स्टार्टअप, ओ सॉरी, गो टू डिस्प्ले, F1 सेटिंग्स, डिस्प्ले, डिस्प्ले में शो मोर करेंगे एंड यहाँ पे आप सर्च करेंगे ऑटो रैप टेक्स्ट। तो इसको एनेबल करने के बाद इट विल नॉट गेट श्रिंक, और इसको एनेबल नहीं किया होगा तो जैसे पहले दिखता था इट विल श्रिंक लाइक दैट। ठीक है, ये एक फीचर था ऑटो रैप। सेकेंडली जो हमने देखा था दैट वाज, सी यहाँ पे आई हैव केप्ट एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक आइटम। यू कैन ऑल्सो गो विथ लेजर्स और डिस्क्रिप्शंस। Secondly, what important feature has come up, that is HSN और SAC validation. Many a times क्या होता है, हमने या तो इनवैलिड HSN दिया हुआ है या फिर HSN भरा ही नहीं है डेटा में, एंड एवरी टाइम जब भी आप मंथली या क्वार्टरली GST R1 फाइल करते हैं तब आपको एरर्स आते हैं कि इनवैलिड HSN है या इनकम्प्लीट HSN है। तो उसके लिए टैली हैज कम अप विद अ सोल्यूशन कि अब जब आप स्टॉक आइटम बनाएंगे, मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेती हूँ। जब भी मैं कोई स्टॉक आइटम बनाऊंगी तो यहीं पे जब मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है डिटेल्स, इधर ही मुझे मिल जाएगा, लेट्स से आई सेड स्पेसिफाई डिटेल्स ओवर हियर, तो मुझे पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो अगर मुझे पता नहीं है HSN, तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ रॉन्ग HSN, इनवैलिड HSN, आई विल जस्ट से कि मैं कौन सा सर्विसेज दे रही हूँ, मैं जो भी प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, मैं जो भी सर्विसेज दे रही हूँ उसका नाम लिखूंगी, तो उससे रिलेटेड जितने भी HSN यहाँ पे है वो मुझे लिस्ट में मिल जाएगा। आई जस्ट सिलेक्ट एंड आई से कंट्रोल A। इफेक्टिव डेट डिस्क्राइब करूंगी कि वो पर्टिकुलर HSN कौन से दिन से वैलिड है ये आइटम पे। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड फीचर कि HSN वैलिडेशन अभी इसमें इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। थर्डली, व्हाट इम्पोर्टेंट दे हैड इंट्रोड्यूस्ड इज फेच पार्टी नेम यूजिंग GSTN। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे IMS का फीचर ऑलरेडी 6.1 से इसमें इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है। तो IMS जब आप पहले 6.1 से अगर आप देखेंगे तो अभी तक के IMS में अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी से आपको इनवॉइस रिसीव हुआ है एंड आपने वो पर्टिकुलर पार्टी का लेजर बुक्स में क्रिएट नहीं किया है, तो उनकी कुछ भी डिटेल्स यहाँ नहीं मिलती थी। लेट्स से आई विल टेक अ कंपनी विच हैज एग्जांपल ऑफ दिस। इसमें मेरा IMS डेटा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा। यस, यहाँ पे DOGM। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी इनवॉइसेस के यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है, कंपनी नेम इज नॉट विजिबल, मतलब मैंने वो बुक्स में वो लेजर क्रिएटेड नहीं है मेरे बुक्स में। तो यहाँ पे दे हैव गिवन यू एन ऑप्शन, फेच पार्टी नेम यूजिंग GSTN। अगर आप F9 करेंगे, ये पर्टिकुलर बिल को सिलेक्ट करके F9 करेंगे तो उनका GST नंबर फेच होगा, एंड फेच पार्टी नेम करते ही पोर्टल से उनके डिटेल्स फेच हो जाएगी यहाँ पे। एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग इट फेच्ड, आप यहाँ पे उसका लेजर क्रिएट भी कर सकते हैं। यू विल से क्रिएट पार्टी लेजर, तो डिटेल्स फेच होने के साथ में यहीं पे लेजर क्रिएट भी हो जाएगा। आपको सिर्फ बताना है कि वो आपके डेटर है या क्रेडिटर, एंड वो लेजर क्रिएट हो जाएगी। आई सेड कंट्रोल A। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम अपडेट हो गया है, और यहीं से फिर आप सिलेक्ट करके स्टेटस भी डिफाइन कर सकते हैं, वेदर आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस बिल और टू रिजेक्ट इट। एक्सेप्ट करना है, पेंडिंग में रखना है, रिजेक्ट करना है, और अगर एक्सेप्ट करना है तो व्हाट इज द रीजन, कंफर्म करना है, गुड्स रिसीव्ड है, इनवॉइस रिसीव्ड है, वॉट एवर इज योर रीजन यू कैन अपडेट। Here you can see 16 का काउंट 15 में चेंज हो गया, दैट वन हैज गॉट रिकनसाइल्ड। तो IMS रिकन्सिलिएशन में ये एक और फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज फेचिंग द पार्टी नेम यूजिंग GSTN एंड गेटिंग द लेजर इंस्टेंटली क्रिएटेड विद इन सेकेंड्स। एंड फोर्थ जो लास्टली इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज कनेक्टेड बैंकिंग। कनेक्टेड बैंकिंग में ऑलरेडी 7.0 तक वी हैड 3 बैंक्स, दैट इज एक्सिस, कोटक एंड SBI। नाउ वी हैव ऑल्सो गॉट ICICI बैंक इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस। मतलब अब अगर आप ICICI बैंक के होल्डर है, लाइक आपका अकाउंट ICICI बैंक में है, तो अब आप टैली में ही डायरेक्टली अकाउंट का बैलेंस फेच कर पाएंगे, स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो कर पाएंगे, ऑटो रिकन्सिलिएशन कर पाएंगे, एंड अपने बैंक से जो पेमेंट्स आपको इनिशिएट करना होता है वो भी आप डायरेक्टली यूजिंग टैली यहीं से पेमेंट्स इनिशिएट कर पाएंगे।
नेट बैंकिंग पोर्टल पे जाके यू डू नॉट नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू मेक द पेमेंट। ये कुछ फीचर्स है जो 7.0 बीटा 7.1 बीटा रिलीज में इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो अगर आपको अभी तक के पूरे पार्ट में कोई क्वेरीज नहीं होंगी तो वी कैन वाइंड अप विद द सेशन। एंड अगर कोई क्वेरीज है तो आई एम लुकिंग ओवर द चैट्स, यू कैन पुट इट डाउन इन द चैट। मैं तब तक सपोर्ट नंबर शेयर कर देती हूँ। टेक्स सपोर्ट नंबर्स मैंने दे दिए हैं, और शेड्यूल 3 का जो रीड था, आर्टिकल रीड था, वो भी मैंने शेयर कर दिया है। एनीथिंग एल्स विच इज टू बी शेयर, अभी अगर शेयर करना है तो बता दीजिए। आई जस्ट पुट इट डाउन इन दी चैट ताकि आप अभी उस चीज को यूज कर सके या गेट टू नो अबाउट दैट। इफ नॉट, क्वेरीज भी अगर कुछ है तो आप डाल सकते हैं। यूट्यूब लिंक, पीपीटी फाइल आई जस्ट शेयर। यूट्यूब लिंक फॉर विच, जो 5 तारीख का सेशन हुआ उसका पूछ रहे हैं आप, या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का जो हुआ था वो पूछ रहे हैं? आई डू वन थिंग, आई जस्ट से यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ यूट्यूब का चैनल, ताकि आप खुद ही जो भी आपको चाहिए वो सेशन आप देख सकें। यहाँ पे एमटेक बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमारा चैनल है। यू कैन जस्ट सर्च एमटेक बिजनेस सॉल्यूशंस। यस, दिस वन इज द चैनल। यू कैन कम ओवर हियर, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ पे वीडियोस में आकर अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी प्रीवियस वेबिनार्स है, जीएसटी कंप्लायंस पे जो हुआ है, टीडीएस पे जो हुआ है, और टीपीएस पे जो हुआ है, ऑल दी थिंग्स आर अवेलेबल ओवर हियर। ये जो पार्ट है दिस इज एनसीई। अगर आपको एनसीई का चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का चाहिए, तो दिस वन इज दैट सेशन। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। शेयर दिस लिंक एंड एनी व्हाट्सएप कम्युनिटी। वी डू नॉट हैव व्हाट्सएप कम्युनिटी। हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है, सपोर्ट नंबर्स, दैट इज द व्हाट्सएप नंबर। लिंक तो मैंने भेज दिया है आपको, इसका एनसीई का भेज दिया है, और चैनल तो आपको मैंने नाम बता दिया, इट इज एमटेक बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। यू कैन जस्ट सर्च। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस ओवर हियर, जितने भी हमारे प्रीवियस वेबिनार्स हुए। वी ऑल्सो कंडक्ट सेमिनार्स फॉर आवर क्लाइंट्स। करंटली वी आर नॉट हैविंग एनी सेमिनार प्लान। एज सुन जैसे प्लान हो जाएगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट एज वेल। ये हमारे प्रीवियस सेशंस के रिकॉर्डिंग्स है। What about purchase entry automatic posting updation? That is also there, but that is already come into 6.1 only. It is Bharat Connect. It is a feature actually introduced by NPCI. That is actually a UPI platform, Bharat Connect. If you receive the invoices or if you share the invoices through that particular platform, irrespective of the software which you're using, even if your supplier is not using Tally, it is fine. He or she has to share the invoice through Bharat Connect with you. If you receive the invoice through Bharat Connect, you will be able to automate your purchase entry. Not only your purchase entry, but also your receipt and payment entries. रिसीट और पेमेंट एंट्रीज को भी आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर पाएंगे जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन अ बटन कि क्रिएट अ रिसीट फॉर मी और क्रिएट अ परचेज फॉर मी। जो भी आप वहाँ डिफाइन करेंगे कि पेमेंट है, परचेज है या रिसीट है, आप वहाँ डिफाइन करेंगे कि मुझे ये क्रिएट करके दो, एंड एंट्री विल बी ऑटो क्रिएटेड। इसका भी अगर आप सेशन रिकॉर्डिंग्स देखेंगे ना, तो हमने कंसिडर किया है हमारे 7.0 के फीचर्स के रिकॉर्डिंग में। यू विल गेट दैट, एंड इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू कैन गेट बैक टू अस ऑन दी सपोर्ट नंबर्स। मैं उसका जो भी डेमोज है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एनीथिंग एल्स? एनसीई का तो डाल दिया है, परचेज एंट्री का हो गया, पीपीटी फाइल आई जस्ट शेयर, यूट्यूब का लिंक डाल दिया है। आई होप आई एम डन विथ ऑल द क्वेरीज विच आर encountered yet. What about consolidation of two branch? For that I'll have to check, sir. You just get back to us on the support numbers, मैं check कर लूंगी।
क्योंकि आई एम नॉट येट अवेयर कि उसका रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट हो रहा है या नहीं 2 ब्रांचेस के लिए। ठीक है। फाइनेंशियल बेस्ड ऑन कॉस्ट सेंटर, मैंने बोला ना सर, ये चीज़ों पे हमें चेक करना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर का हितेंद्र सर ने भी पूछा था, बट आई हैवंट येट चेक्ड ऑन दिस। मैं अभी ये ट्रांसक्रिप्ट ले लूंगी ये चैट्स का, ताकि ये जो भी क्वेरीज है विल चेक ऑन दिस, एंड इधर आई और माई टीम विल गेट बैक टू यू। आपके पास भी सपोर्ट नंबर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इफ़ यू वांट कि आपका पर्सनलाइज्ड डेटा पे वर्किंग हो जाए, तो आप अल्ट्राव्यूअर के थ्रू मुझे एक्सेस प्रोवाइड कर दीजिए। आई स्टडी योर कॉन्सेप्ट, आपका जो केस है वो स्टडी करके विल वर्क ऑन दैट। डमी एक्सेल फाइल ऑफ शेड्यूल 3 शेयर करने से बेटर यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस ना सर, मतलब ये एड ऑन प्लग इन इंस्टॉल करवा के, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी चार्जेबल। ये आपको रिलीज 7.1 में अपडेट ही मिला है, तो इट इज़ फॉर फ्री। आप सिर्फ एड ऑन इंस्टॉल करेंगे एंड वहां से आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और इनकेस अगर आपको चाहिए डमी, तो मैंने अभी जो वेबिनार में दिखाया है वो पर्टिकुलर शीट मैं शेयर कर सकती हूँ आपसे। सपोर्ट नंबर्स पे मुझे गेट बैक कीजिए ना, तो मैं आपको एक्सेल प्रोवाइड कर देती हूँ। अल्ट्राव्यूअर के थ्रू विल शेयर इट। या एनीथिंग एल्स? माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। चलो, इफ नॉट देन वी आर गुड टू गो। विल जस्ट कम टू जूम। हाँ, पीपीटी मैं शेयर कर देती हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए, इधर ही कर देते हैं, नहीं तो आई फॉरगेट। पीपीटी विल इधर आप चैट। विल दिस अलाउ टू शेयर द पीपीटी ओवर हियर? इट इज नॉट एक्चुअली गिविंग द ऑप्शन। फाइल में जाने के बाद इट इज जस्ट शोइंग गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स। अच्छा, आई हैव योर कंप्यूटर, ठीक है। Got it, got it. हम्म, यहाँ पे व्हाट इज माय पाथ? Network files are not reflecting over here. And see. Okay, I'm using it, so it is not allowing me to share. Yeah, I have shared the PPT. I hope अभी आप लोगों को मिल जाएगा चैट पे। कंफर्म कीजिए ना अगर आपको चैट पे मिल गया है तो पीपीटी। Okay, received. Thank you so much. So yes, with this, as we come to the end of today's webinar, I would like to thank each one of you for joining us and being such an attentive audience. We hope this session has given you
a clearer understanding of the powerful enhancements available in Tally Prime 7.1. On behalf of Aimtech Business Solutions Private Limited, I sincerely appreciate your time and participation. We are committed to helping businesses maximize the value of their Tally investment through expert implementation, training, customization, and ongoing support. Thank you once again for being part of this session. We look forward to connecting with you again in our future webinars and training programs. Have a wonderful day ahead and keep growing with Tally Prime. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you so much. Thanks, Hitendra sir. Thank you, Satish sir. Thank you, everyone. Thanks, Devin sir.